बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सीधे आपको रुख करवाते हैं लंदन का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहने सुनिए। एक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ मस्ट बी हेल्ड अकाउंट। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। Friends, we thank the Prime Minister and his government for strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam. We are united in the belief that there is no place for double standards in the fight against terrorism. We also agree that the forces which espouse extremist ideologies should not be allowed to misuse democratic freedoms. Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held to account. Our security agencies will continue to enhance cooperation and coordination on matters such as the extradition of economic offenders. Friends, इंडो-पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। Friends, we have continued to exchange views on peace and stability in the Indo-Pacific, the ongoing conflict in Ukraine, and the situation in West Asia. We support early restoration of peace and stability. Respect for sovereignty and territorial integrity of all countries is essential. Today's era demands development, not expansionism. Friends, पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे। उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। दे did not just bring curry from India, but also creativity, commitment and character. इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है। Friends, last month, in the unfortunate plane crash in Ahmedabad, our sisters and brothers of the UK were among those who lost their lives. I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. The people of Indian origin in the UK form a living bridge that connects our two nations. They did not just bring curry from India, but also creativity, commitment, and character. Their immense contributions are not just limited to UK's prosperous economy, but are also visible in UK's culture, sports, and public service. Friends, जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring सॉलिड पार्टनरशिप। आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। Friends, I would be remiss not to mention cricket,
when India and the UK are coming together, especially during a test series. For both of us, cricket is not just a game, but a passion. And also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building a high-scoring, solid partnership. The agreements concluded today and Vision 2035 are milestones which advance this very spirit. प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं और आशा करता हूं कि हमें शीघ्र ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister, I thank you once again for your warm hospitality. I would also like to take this opportunity to extend an equally warm invitation to you to visit India. I am eagerly looking forward to hosting you in India very, very soon. Thank you very much. Thank you. Thank you. आए और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और इससे पहले पीएम जो यूके के ब्रिटेन के जो पीएम हैं उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रिश्ता है भारत और ब्रिटेन का और ये जो डील हुई है भारत और यूके के बीच में लंदन के बीच में ये निश्चित तौर पर दोनों देशों के लिए बेहद ही फायदेमंद और लाभकारी साबित होने वाली है। तो ब्रिटिश पीएम ने कहा है कि भारत से ऐतिहासिक रिश्ते इसके बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद विमान हादसे के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मारे गए यूके के जो परिवार हैं उनके लिए उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही साथ उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया और सारे एक तरीके से उन्होंने मत हासिल करने का प्रयास किया और एक तरीके से उन्होंने संदेश दिया कि भारत समेत जो तमाम वैश्विक पटल पर देश हैं वो टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और इसको लेकर भारत का क्या स्टैंड है वो भी उन्होंने किया। FTA डील हो चुकी है। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो डील जिसको लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था वो डील हो चुकी है, वो करार हो चुका है। अब जो कारोबार होगा इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। FTA डील क्या है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताते चलते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता और इसी को FTA कहा जा रहा है। दो देशों के बीच आसानी से बिजनेस के लिए यानी व्यापार के लिए और कारोबार के लिए इस डील को किया जा रहा है। टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें अब दोनों देशों के बीच में जो अड़चन बनती है कारोबार में उन्हीं अड़चनों को खत्म किया, यानी कोई टैरिफ नहीं, कोई कोटा नहीं, कोई सब्सिडी जैसी रुकावटें नहीं है। एक दूसरे देश पर बेहद कम या जीरो टैक्स होगा। कई पहलू ऐसे होंगे, कई चीजें ऐसी होंगी जिनका कारोबार हो रहा होगा तो उन पहलुओं पर जीरो टैक्स लगेगा, नहीं तो बहुत कम टैक्स वो देश एक दूसरे पर लगाएंगे। तो ये एक बड़ी डील जो है वो ब्रिटेन और भारत के बीच में हुई है। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।